Hello students, how are you? Students, myself Himanshu Misra and I am your new physics teacher. Today I would like to introduce the paper of science, that means the subject science which you have to study in class 9th and different parts of it. Then I will move towards in our portion which is named as physics. So the science paper is now categorized into three portions, as you already learned about it, but now we have to come on a serious concern, that is the paper is strictly divided into three parts which are named as physics, chemistry and biology, and I will teach you the portion physics as you see on the board. Now I would like to introduce the chapters included in the physics, because the most of students are confused in differentiating the units which is belongs to chemistry and which is belongs to physics and which one is belongs to physics and another papers. So in class 9th there are 5 units mentioned in NCERT syllabus. First unit which you have to study is named as motion. The second one is force and laws of motion. The third one is gravitation, and the fourth one work, power and energy, and last one is sound. These are the 5 units which belongs to physics portion, in particular science paper, science subject. Okay, today we will start the chapter motion. Okay, and Okay, student. Now we will start the chapter motion. Before starting this chapter, I would like to tell you what is the physics, because you are going to study first time specialized physics part. Okay, so first of all we have to understand what is the physics. हम physics को कैसे समझते हैं, वो कि physics क्या है और ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले जो हमारा एम होना चाहिए, that is what is the physics. आप कोई भी चीज पढ़ें उसको जानने की जरूर कोशिश करें कि वो क्या है और उसका हमारे लाइफ से क्या रिलेशन है, क्या कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है. तो आई थिंक वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और बड़ा जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो सबसे पहले व्हाट इज द फिजिक्स. तो फिजिक्स क्या है बेटे, साइंस का एक पार्ट है. एज यू सी दैट कि साइंस में मैंने बताया कि आपने तीन पोर्शन किया, physics, chemistry and biology, and a part is physics. Then what is the physics? Physics is the simple study of the nature. It is study of the nature. If someone is coming to you and ask what is the physics, then you can answer it in one line, and which is, it is the study of nature. What is the nature? Nature is everything which is around us, including us. Even including us is a nature. हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो सब नेचर हैं और हम भी नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं. देन अगर हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो वो स्टडी जो बोला जाएगा वो नथिंग बट आपका फिजिक्स बोला जाएगा. तो फिजिक्स आप कह सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ द नेचर. और प्रिसाइजली और अंदर जाके और अच्छे से समझाना चाहें, इट इज द स्टडी ऑफ मास and
energy, mass and energy, and transformation between them. Okay students, so अगर आपको कोई अचानक से आपसे पूछता है कि what is the physics, then you can answer in one line, and which is it is the study of nature. And if someone is very intelligent and you think that this person is have some knowledge about the physics, then you will tell that it is the study of mass and energy and transformation between them. What is the mass? मास क्या है आपका? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, कि किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म और इन गैस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो। अगर किसी सब्सटेंस में या किसी ऑब्जेक्ट में कुछ आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा बिलो क्लासेस में, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, रहता है, तो कितना रहता है वही आपकी क्वांटिटी क्या है? मास। एंड एनर्जी, यू नो दैट, कि आपने पढ़ा होगा कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, काम करने की आप जो कैपेबिलिटी है आपकी वही क्या है? एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में क्या है कि हम नेचर की स्टडी करते हैं, और नेचर में बेटे आपकी दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट वन इज द मास एंड सेकंड वन इज एनर्जी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ऑन द सेइंग इट वेरी अपर लेवल, अगर हम इसको बहुत ऊपर से देखें नेचर को, तो नेचर में दो ही चीज एग्जिस्ट करती है इन द व्यू ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो ही चीजें समझ में आएंगी, कि एक मास के फॉर्म में है, दूसरा एनर्जी के फॉर्म में है। और जब हम इसको और डीपली स्टडी करते हैं तो हमें यह दिखता है कि जो भी प्रोसेस हमें दिखते हैं नेचर में, जो भी प्रोसेस दिखते हैं, वो बेसिकली इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कहीं मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और कहीं एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपके सामने अगर मैं क्या करूं, एक 1 kg ऑफ वुड ले लूं और उससे मैं कंबंशन कर दूं, जला दूं, तो आप देखते हैं कि उससे कुछ पार्ट आपका रिलीज होता है जो आपको लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में फील होता है। आफ्टर दैट कुछ वहां पर वेस्ट मटेरियल बचता है। तो 1 kg ऑफ वुड मतलब 1 kg लकड़ी से ऐसा कौन सा पार्ट निकल गया कि आपके पास कुछ मास पहले से कम बच रहा है, देन दैट इज द एनर्जी। तो आपने यहां देखा कि मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फर्दर वी कैन ऑल्सो सी दैट समवेयर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन मास। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे देखिए कि हम क्या करते हैं कि पेड़, जब हम ट्रीज का फोटोसिंथेसिस फिनोमेना पढ़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस फिनोमेना हम देखते हैं कि सन से लाइट एनर्जी को हमारी जो पेड़ होती हैं उनकी पत्तियां एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, और उसी एनर्जी से वो क्या करती हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। तो फूड इज इन द फॉर्म ऑफ मास। तो ये मास और एनर्जी का आप इक्विवेलेंस देख रहे हो। तो अगर इन चीजों की हम स्टडी करें तो वो स्टडी क्या बोली जाएगी बेटे? फिजिक्स बोली जाएगी। ओके, आई थिंक आपका फंडा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और वो चैप्टर आपका है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम मोशन है। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन स्टार्ट चैप्टर हमारा होता है, और चैप्टर समझने, मोशन को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ बातों को समझने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन? आप बहुत बार बोलते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है। तो ये तो डेली लाइफ में हुआ, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कि बेटे आपको यहां अपने स्कूल में आना है, या मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैं आपके घर आना चाहता हूं, और मैंने आपको कॉल किया कि आई एम ऑन द वे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पूछेंगे सर वेयर आर यू, या आप बिना ये पूछे कि आप कहाँ पे हैं एड्रेस बताना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहीं भी हूं, आपने पूछा कि सर कहाँ पे हैं आप, और आपने एड्रेस बता दिया कि ऐसे ऐसे आ जाइए, जहां पे हैं वहां से लेफ्ट ले लीजिए और राइट ले लीजिए। अगर आपने ये मेरे से पूछा कि मैं कहाँ हूं, तब तो आप ये समझ पाए कि वहां से अगर लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे तो हमारे घर पे आएंगे। लेकिन अगर आपने बिना पूछे ये डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर पोजीशन पे है, और आपने अगर एड्रेस बताना शुरू किया, तो मैं शायद है कि आपके घर पे ना पहुंचूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना पड़ता है। यानी अगर आपने मुझे फोन पर लोकेट कर लिया, दैट मीन्स आपने ये पूछा कि सर आप कहाँ हैं,
तो मैंने अगर अपनी पोजीशन बता दी, अपने पॉइंट को बता दिया, अपने लोकेशन को बता दिया, तो एक्चुअली हम क्या बता रहे हैं, अपने पोजीशन को बता रहे हैं। किसके अबाउट? आपके अबाउट। आप क्या है यहाँ पर? रिफरेंस है। तो किसी रिफरेंस मतलब किसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अबाउट हम बात करेंगे, या एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बात करेंगे। जैसे मुझे आपके घर आना है, तो आप वो पॉइंट है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे फाइनली आपके घर पहुंचना है। तो जो भी लोकेशन आप बताओगे बेटे, वो अपने घर के अबाउट बताओगे। तो किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मुझे यहां पर लोकेट करते हो, तो ये हमारी क्या है? यही हमारी पोजीशन है, यही हमारी पोजीशन है। किसके अबाउट? अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। ओके, देन आपको समझ में आया कि पोजीशन है क्या। तो पोजीशन इज अ रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन देखिए, इट इज लोकेशन ऑफ द पॉइंट। एक्चुअली इट इज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट about a reference point। तो किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट बेटे ये क्या है? आपकी लोकेशन है किसी पॉइंट की। इट इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट की लोकेशन होगी, और ये जो लोकेशन होगी वो बेटे किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट होगी, और इस लोकेशन को हम बोलेंगे पोजीशन। तो पोजीशन आई थिंक आपको समझ में आया। चलिए, अब बात आती है स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग जो हमें समझना है, वो समझना है कि रेस्ट या स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है। आप चाहे इसे रेस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई रेस्ट पूछता है, then he is asking about the state of rest. Either you can say state of rest or rest. These are the both same terms. Okay. तो state of rest या rest क्या है? For example, you are watching the video, this video on your home. आप अपने घर पे इसको क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं ऑन ए स्टेशनरी पोजिशन ऑलमोस्ट। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप एक प्रॉपर पोजिशन पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं। तब आपकी जो पोजीशन है बेटे, वो देखिए क्या है? फिक्स्ड है। आपकी जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है। किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए, मान लीजिए अगर ये वीडियो 25 से 30 मिनट का है, तो इस 20 से 25 मिनट तक आप स्टेशनरी होके रुक के इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस दौरान आपकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स आप जिस पोजीशन पे पहले थे 25-30 मिनट तक उसी पोजीशन पर बने हुए हो। तो ऐसे स्टेट को, ऐसे कंडीशन को स्टेट ऑफ रेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेस्ट बोला जाता है। या कह सकते हैं कि बॉडी इज इन रेस्ट। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट का आपको बात समझ में आया। इफ अ बॉडी is not changing its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, then it is called body is at rest. Okay, if a body is not changing its position with respect to its surrounding which we are using the word surrounding. What is the surrounding? The object around us are considered as a surrounding. For example, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो बगल में रखा फ्रिज आपके लिए क्या है? सराउंडिंग है। जो आपका बल्ब जल रहा है कमरे में वो भी क्या है? आपके लिए सराउंडिंग है। whatever the things around us are considered as the surrounding.
तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी को बोल सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है या स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, सड़क के किनारे जो ट्री है वो भी आपकी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। बट वट एवर बी द थिंग, अब ये यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि तो क्या रेस्ट पोजीशन हमेशा के लिए है, जैसे हमारी घर हमेशा रेस्ट पर है, ट्री हमेशा रेस्ट पर है, तो क्या रेस्ट की कंडीशन फॉरएवर है? नहीं, हम यहाँ पे टाइम का भी ध्यान देते हैं कि अगर हमें कोई, जैसे हम 1 घंटे तक बैठ के पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे तक हम स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कभी कभी तो देखते ही हैं, कभी कभी टाइम को भी देखते हैं कि हाँ टाइम के अकॉर्डिंग भी कितना वो रेस्ट पर या कितनी देर रेस्ट पर रहा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप नीचे लिखिएगा, एग्जाम्पल यहां पे फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट ऑफ रेस्ट को एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, ट्री या ट्री नियर द रोड, ऐसे कुछ भी, आवर हाउस, आवर होम, चाहे जो लिखें, एटसेट्रा। ये सब सारी चीजें आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट पे कंसीडर की जा सकती हैं। चलिए, अब हमें जानना है स्टेट ऑफ मोशन को, या बच्चों इसे हम शॉर्ट फॉर्म में या मोशन भी कह सकते हैं। व्हाट इज द मोशन और व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन? अगर आप देखें, एक ऑब्जेक्ट आपके सामने से, या मान लीजिए वो कार है या बाइक है ना, वो मूव कर रहा है, आप किनारे पर खड़े हैं, देन यू कैन से दैट द कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू। आपके रिस्पेक्ट में वो कार क्या है, मोशन में है। तो इस क्यों? क्योंकि कार के लिए आप सराउंडिंग हो गए। पेड़ जो है आपके बगल में, वो कार के लिए सराउंडिंग है। ओके, तो सराउंडिंग के अबाउट वो कार आपकी जो दिख रही है वो पोजीशन चेंज कर रही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो बेटे, तब हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है, या उसके इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स position with respect to its surrounding, then the body is called in मोशन। तब हम बॉडी को बोलेंगे कि बॉडी हमारी मोशन में है। यहां पे एग्जांपल्स हैं इसके, क्या, कार मूव कर रही है, ये भी आपका एग्जांपल है ना। एग्जांपल्स क्या है? मूविंग कार, मोशन ऑफ एरोप्लेन, ball hitted by batsman, अगर बैट्समैन ने क्या किया, बॉल को हिट किया, देन बॉल इज सेट टू बी इन मोशन अंटिल इट्स बिकम्स एट रेस्ट और इट इज बिकम्स जीरो स्पीड। ठीक है, जब तक इसकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो ये भी क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टेट ऑफ
मोशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। आइदर यू आर मूविंग ऑन रोड बाय बाइसाइकिल और कार और बाइक। These are the examples of state of motion. Now we have to be careful at this moment when we have learned about the state of rest or state of motion. Both terms are comparative terms. Why I am using comparative term or relative term? Think about the condition. Think there are two persons sitting in the car and car is moving, and you are just outside the car and watching them, they are going. Okay, if you see that the car is moving and both persons are moving with respect to you, then you can say that these persons are in motion. But what about the persons sitting inside the car? They are just at the stationary about each other. One is sitting the driver position and another one is just sitting adjacent to him. Both of them, दोनों आपस के लिए क्या है? स्टेशनरी है. यू कैन इमेजिन, दोनों क्या है? आपस में बगल में बैठे हुए, कार मूव कर रही है. तो बाहर से आपने देखा तो कह सकते हो कि हाँ कार मूव कर रही है, और कार में दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. तो इस रेफरेंस में आप कह सकते हो कि हाँ कार इज इन मोशन. बट जब आप कार में बैठे दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों पर्सन्स के बारे में बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं बेटे, वो आपस में तो क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट पर है. तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे उसके सराउंडिंग के साथ. तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो, या जैसे मैंने कहा कि कार के बगल में दोनों बैठे हुए आपस में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो आपस में मोशन में नहीं है. वो मोशन में है लेकिन बाहर खड़े किसी ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में, या किसी पेड़ के रिस्पेक्ट में, या किसी वहां गुजर रहे किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन हमेशा रिलेट करके डिसाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर स्टेट ऑफ रेस्ट पर हैं, लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम के लेवल पे जाके देखें तो हमारी अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. तो सन के अबाउट हम स्टेट ऑफ मोशन में हैं. हम कह सकते हैं ना कि हम स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं अभी, लेकिन अगर हम अपना सराउंडिंग चेंज कर दिए, हमने जिससे कंपेयर करने की बात की, हम वो कंपैरिजन किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं. अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, अब आप कंपेयर अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं करके सन के रिस्पेक्ट में करिए, सूरज के रिस्पेक्ट में करिए. तो आप देख रहे हो कि हाँ हमारी सन के अबाउट क्या हो रही है? अर्थ रोटेट कर रही है. तो सन के अबाउट हम किस में है? स्टेट ऑफ मोशन में है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो सकता है. डिपेंड करता है कि आप उसको किससे कंपेयर करते हो. आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई जो मैं आपको बताया. ओके, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की बात समझ में आई. यहीं पर थोड़ा सा आप नोट लिखिएगा, यही कि आप अ बॉडी कैन बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in state of motion depending on its surrounding. ओके, तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. सराउंडिंग मतलब बेटे, आप जिस ऑब्जेक्ट से, आपके आसपास के ऑब्जेक्ट सराउंडिंग है, बट अर्थ के लिए सराउंडिंग कौन है? सन है ना. तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन बताई जाती है. चलिए आज के लिए इतना ही. आप इसे रिवीजन करेंगे और जो भी समस्या होगी आप मेरे से बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.